Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss the clinical pharmacology of anti-epileptic drugs. But before discussing about anti-epileptic drugs, we will discuss that what is epilepsy. Approximately 1% of the world population has epilepsy. It is the third most common neurologic disorder after dementia and stroke. एपिलेप्सी बेसिकली क्रोनिक डिसऑर्डर है ब्रेन के फंक्शन का, जिसमें रिकरेंट, पीरियोडिक और अनप्रेडिक्टेबल अकरेंस होती है सीजर्स की. अब व्हाट आर सीजर्स? सीजर्स आर बेसिकली ऑल्टरनेशन इन बिहेवियर ड्यू टू डिसऑर्डर्ड एंड द रिदमिक फायरिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ब्रेन न्यूरॉन इसमें एक्सेसिवली एक्साइटेड हो जाते हैं और वो डिसऑर्डर फैशन में फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं. अब सीजर्स को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में. एक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स है और एक एपिलेप्टिक सीजर्स है. अब नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स वो होते हैं दैट कैन बी प्रोवोक्ड. जो एक नॉर्मल ब्रेन है उसमें हम इसे इवोक कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रिक शॉक या केमिकल कन्वर्जन देके एक नॉर्मल ब्रेन में इट कैन बी इवोक्ड. बट epileptic seizures occur without evident provocation. Now coming toward the treatment of epilepsy. For the treatment, always remember one thing, that epilepsy cannot be cured, neither it has any type of prophylaxis. So what we do? We do pharmacological therapy, that is symptomatic. Pharmacological therapy only prevent seizures. The only focus of this treatment is to treat symptoms, not epilepsy. For the long time, it was assumed that a single anti-epileptic drugs could be enough developed for the treatment of all forms of epilepsy. But the causes of epilepsy are so diverse. Following are some of the causes of the epilepsy. Number 1 is idiopathic. Most common and the most cases of epilepsy are the idiopathic. They don't have identifiable cause. Second thing is genetic, inheritance, heredity. Third one is congenital defects, the defects that are by birth, head injury, trauma, or hypoxia. What is hypoxia? Hypoxia is a condition in which the region of the body is deprived of the adequate amount of the supply at the tissue level. The fourth cause of the epilepsy is infection. Infection can be because of the virus or it can be because of the bacteria. For example, meningitis, that is basically inflammation of the meninges that are the clearing of the brain. Other examples are the brain abscess or cerebral abscess, that is also inflammation and the collection of the material that coming from the local regions. And the next example is of the viral encephalitis, that is also the inflammation of the brain. The fifth cause of the epilepsy is concussions, that mean the traumatic brain injury or depressed skull and fractures. The sixth one are brain tumors, vascular occlusions, that mean the blockage of the vessels, and stroke. The next is basically the fever in children. After an infection, the spike in the body temperature is produced that result in febrile convulsions. And the last one is a hypoglycemia. अब जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स. तो एपिलेप्टिक सीजर्स जो है वो बेसिकली अराइज कहाँ से कर रहे हैं? दे आर अराइजिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इंस्टेड के वो बाकी सी एन एस के स्ट्रक्चर से अराइज कर रहे हैं, सच एज थैलमस, ब्रेनस्टेम और सेरिबेलम. वो किधर से अराइज कर रहे हैं? दे आर अराइजिंग फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स. दे आर क्लासिफाइड इंटू टू मेन कैटेगरीज. ठीक है, पहली जो है वो हमारे पास पार्शियल सीजर्स हैं जिनको हम फोकल सीजर्स भी बोलते हैं, और दूसरी दे आर जनरलाइज्ड सीजर्स. अब जो यूज़ ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का सीजर है. तो हम साथ साथ टाइप डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो हम उस टाइप में देते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम जो है वो पार्शियल सीजर्स की फर्दर टाइप्स डिस्कस करते हैं जो डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, एक हमारे पास सिंपल पार्शियल सीजर है, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, और एक हमारे पास पार्शियल सीजर जनरलाइज सेकेंडरली जनरलाइज्ड है. ठीक है,
अब जो सिंपल पार्शियल सीजर है दे रिमेन लोकलाइज विद इन द मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस दोनों मेंटेन रहती है, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होती इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर प्रोड्यूस द मोटर एंड द सेंसरी सिम्टम्स, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉन्शियसनेस भी इम्पेयर हो जाती है और मेमोरी भी इम्पेयर हो जाती है। अब जो पार्शियल सीजर है उनका जो ऑनसेट है वो लोकलाइज्ड है, ठीक हो गया। पार्शियल सीजर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंडरी जनरलाइज्ड। सिंपल सीजर दे रिमेन लोकलाइज विद इन द मोटर कॉर्टेक्स, इसमें कॉन्शियसनेस जो है और अवेयरनेस है वो मेंटेन रहती है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कॉन्शियसनेस और मेमोरी इम्पेयर हो जाती है। अब पार्शियल सीजर्स में हम जो ड्रग्स देते हैं उनमें हम 2 टाइप की ड्रग्स होती हैं, एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है और एक अल्टरनेटिव्स होती हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस वो ड्रग्स होती हैं जो ओल्डर ड्रग्स हैं और जिन्हें हम फर्स्ट लाइन में यूज़ करते हैं, और अल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं वो ड्रग्स हैं जो न्यूअर ड्रग्स हैं और ये तब देते हैं जब ड्रग ऑफ चॉइस अपने जो सिम्टम्स हैं उनको क्योर करना ख़त्म कर देती है, उनके बस की बात नहीं होती, अनएबल टू क्योर द सिम्टम्स, तो फिर हम अल्टरनेटिव ड्रग्स देते हैं। अब जो पार्शियल सीजर्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास कार्बामेज़ेपिन है, फेनाटोइन है और वेल्पोरेट है। वेरस अल्टरनेटिव में हमारे पास लिमोट्रिगीन है, गैबापेंटीन है, इस तरह ये सारे बाकी जोनासेमाइड वगैरह ये सारे हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग्स में आ रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जर्नलाइज सीजर्स हैं। अब जर्नलाइज सीजर वो होते हैं जिनमें दोनों हेमिस्फीयर जो है वो वाइडली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनका जो हमारे पास ऑनसेट है वो लोकलाइज एक स्पेसिफिक रीजन में नहीं होता, ठीक है। इसमें हम इसलिए हम इसे जर्नलाइज बोलते हैं। अब जर्नलाइज सीजर्स के फर्दर जो है वो 5 डिवीजन है। पहला हमारे पास जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, दूसरा एब्सेंट सीजर है, तीसरा टोनिक सीजर है, फोर्थ वन इज एटोनिक सीजर एंड फिफ्थ इज क्लोनिक myoclonic सीजर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। टोनिक का मतलब है ओवरऑल कंट्रैक्शन ऑफ ऑल मसल और क्लोनिक का मतलब है रैपिड जर्की मूवमेंट। तो हमारे पास जनरलाइज टोनिक क्लोनिक जो है इसमें हमारे पास ऑल्टरनेशन होता है बिटवीन द टोनिक फेज एंड क्लोनिक फेज, ठीक है। अब जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर जो है ये सब मोस्ट कॉमन है एंड इट इज़ अ मोस्ट रेयर फॉर्म ऑफ द जनरलाइज सीजर, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑल्टरनेटिंग टोनिक और क्लोनिक फेस होता है। अब पहले हमारे पास टोनिक फेस होता है जिसमें सारे जो है वो मसल जो है वो हमारे पास रिजिड कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, स्पेशली मसल्स ऑफ ट्रंक एंड लिम्स में। और फिर उसके बाद हमारे पास क्लोनिक फेस होता है जिसमें हमारे पास दैट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्विचेस एंड जर्क्स। अब जो है वो हमने टोनिक क्लोनिक सीजर्स तो पढ़ लिया, अब हम इसके ड्रग्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस मैंने बताया है, जो ओल्डर ड्रग्स होती हैं उनको बोलते हैं और जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं उनको बोलते हैं। तो टोनिक क्लोनिक सीजर्स के लिए हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो कार्बामेज़ेपिन है, फिनोबार्बिटॉल है, वेल्पोरेट है और फेनाटोइन है, और अल्टरनेटिव हमारे पास लिमोट्रिगीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सीजर जो है वो हमारे पास एब्सेंट सीजर है, इसको पेटेट मॉल सीजर भी बोलते हैं, जो हमारे पास यूजुअली बिगन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड व्हेन अ चाइल्ड इज़ अबाउट 3 to 5 years, ठीक है। अब बेसिकली इसका ऑनसेट जो है वो बहुत एब्रप्ट होता है, एज अ रिजल्ट कॉन्शियसनेस इज इम्पेयर्ड फॉलोड बाय द स्टेरिंग एंड सेसेशन ऑफ द ऑनगोइंग एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है वो अपना होमवर्क कर रहा है, ठीक है, और उसमें हमारे पास एब्सेंट सीजर होता है, तो उसके में सबसे पहले क्या होगा कि लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस इम्पेयर हो जाएगा। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयर होने के बाद उसमें एक ब्लैंक स्टेयर आएगी, ठीक है, और उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी जो कर रहा है, जो अपना होमवर्क कर रहा है, उसको स्टॉप कर देगा फॉर द 5 to 10 seconds, और फिर 5 to 10 सेकेंड के बाद उसे दोबारा रिज्यूम कर देगा। अब बेसिकली जो एब्सेंट सीजर है, पेटेट मॉल सीजर है, इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, दैट्स अबाउट 5 to 10 सेकेंड, ठीक है, और इसकी जो अक्रंस है वो अप टू द 100 times per day, ठीक है। अब एब्सेंट सीजर्स के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, जो ओल्डर ड्रग हम देते हैं वो एथॉक्सीमाइड है और साथ वेल्पोरेट है, और जो अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं वो लिमोट्रिगीन है, साथ हमारे पास क्लोनाज़ेपैम है, ठीक हो गया।
अब जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सीज़र, जो जनरलाइज सीज़र, वो हमारे पास टोनिक सीज़र है, जिसमें सारे बॉडी के मसल की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारे पास दैट इज़ एटोनिक सीज़र, ठीक है, जिसमें हमारे पास पूरे बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी टोन जो है वो लॉस हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सीज़र है क्योंकि इसमें टोन लॉस हो जाती है, तो जब पर्सन स्टैंड करता है वो फॉल कर जाता है और एज अ रिज़ल्ट उसको हेड इंजरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन एंड लास्ट वन इज़ अ क्लोनिक मायोक्लोनिक सीज़र। क्लोनिक का मतलब हमने पहले पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिंग जड़ की मूवमेंट है, और मायोक्लोनिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन ग्रुप ऑफ मसल है, ठीक है। और ये क्लोनिक और मायोक्लोनिक फेजेस में एक साथ होता है, और इस कंडीशन में जो हम ड्रग यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, वो हमारे पास वेलपोरेट है और लेमोट्रिकीन है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्लोनाज़ेपैम है, ठीक है। At the last but not least, important questions for FUIC students are mentioned in description box. Thank you.